کی جو بناوٹ ہے یا کردار مسیحی کردار کے بننے میں سب سے امپورٹنٹ یبی صاحب نے جو ایک آیت بولی میں نے پچھلے آج کل چونکہ یہ میں مطالعہ کر رہا ہوں اس کا تو وہ ہے فارمڈ کنفارمڈ اینڈ ٹرانسفارمڈ. مسیح کی صورت جب تک مسیح تمہیں صورت نہ پکڑ لے پھر ڈھلتے جاؤ اور تبدیل ہوتے جاؤ. یہاں جو تبدیلی ہے اس میں ہمارا رول کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اے ڈیزائر؟ کیا آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ سم ٹائمز ہمارے اندر تبدیل ہونے کی ڈیزائر ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کر میرے اندر تبدیل ہونے کی ڈیزائر نہیں ہے تو بیسیکلی خدا کردار سازی میں اس کا جو اہم ترین رول ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. اور اگر آپ ہولی اسپرٹ کو سبمٹ نہیں کریں گے، پاک روح کے آپ تابع نہیں ہوں گے تو آپ کا کردار کبھی بھی نہیں بنے گا. پھر خدا نے کردار سازی کے لیے خادموں کو رکھا ہے، مینٹورز کو رکھا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے. آئیے ہم تھوڑی سی دیکھیں گے کہ خداوند نے جب اپنے شاگردوں کو لیا تو انہوں نے کوئی آلموسٹ 12 باتیں ان کے ساتھ کی جس سے ان کا کردار بن گیا. وہ کامیاب رسول بن گئے، وہ کامیاب خادم بن گئے اور وہ بے مثال خدمت کر گئے. نمبر 1، how Jesus as a mentor developed their character. یسوع نے کیسے ان کے کردار کو ڈیولپ کیا؟ نمبر 1، یسوع مسیح کی ان کے ساتھ گہری رفاقت تھی، وہ ان کے ساتھ رہا، وہ اس کے ساتھ رہے. نمبر 2، جو اس میں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان پر ٹرسٹ کیا. آپ نے اپنے ساتھیوں پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ آپ ان کو جب بھیجتے ہیں when Jesus sent them تو یسوع نے ان پر ٹرسٹ کیا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی زندگی سے انہیں بائی ایگزامپل ان کو سکھایا. جب وہ دعا کرتے تھے تو یسوع شاگرد مجبور ہوئے انہیں پوچھنے پر کہ ہمیں دعا کرنا سکھا. ایک اور بات، ٹیچ کرنے سے اس نے خدا نے انہیں سکھا کر جو ہے وہ انہیں کردار سازی میں ان کی مدد کی. مینٹور کا میں رول بتا رہا ہوں. پھر ان سے پیار کیا جیسے میں نے تم سے شروع میں آخر تک ان سے پیار کرتا رہا. میں سپیڈ سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ مختصر میں بات کر سکوں. جی سر. چھٹی بات، یسوع مسیح نے ان کے پریزنٹ کو نہیں فیوچر کو دیکھا. پریزنٹ میں پیٹر جو ہے وہ جذباتی ہے لیکن یسوع نے اس کو مستقبل کو. ابھی میں سکھا رہا تھا کہ جو کردار سازی ہے اس میں چرچ کا، پاسٹر کا خدا کے بعد رول ہے. خدا سب کو استعمال کرتا ہے. تو اس میں ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی کہ ہولی اسپرٹ جو ہے خدا یسوع ان کے ساتھ رہے ہیں. ساتھ رہنا شاگرد اور استاد کا یا مینٹور اور مینٹی کا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ ساتھ رہیں گے تو آئی ڈو بلیو کہ جو آپ کا ڈسائپل بننا ہے، آپ کا خادم بننا ہے، اس کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. پھر میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے شاگرد کے پریزنٹ کو نہیں فیوچر کو دیکھنا ہے، اس کے پوٹینشل کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا بن سکتا ہے. پھر آپ نے ان کو اختیار دینا ہے کہ وہ کچھ کریں. جیسس گیو دیم اتھارٹی کہ وہ جائیں اور کام کریں. پھر اس کے علاوہ خداوند نے ان کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ خداوند کی زندگی میں جو حلیمی تھی، ٹرانسپیرنسی تھی یا اتھینٹسٹی تھی، جو خالص پن تھا، جو شفافیت تھی، شفاف ہونا تھا یا حلیمی تھی، وہ یسوع مسیح نے اس کا مظاہرہ کر کے ان کو دکھایا ہے. اس لیے وہ ان کے ساتھ پبلکلی روئے ہیں. When the Father will weep before the disciples, one day disciples will also weep for the dead and Lazarus will no more be in the grave. لازر قبر میں نہیں رہے گا. یسوع مسیح نے پریئر کے ذریعے ان کو ماڈل کیا. He prayed اور ایک دن شاگرد مجبور ہو گئے پوچھنے پر کہ ہمیں سکھا، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. Our prayer life must be deep. Our prayer life must be with character. Sometimes people pray 8 hours, 10 hours, and character is not there. I don't know what is this, but I don't know it's a good prayer life. So اس لیے آپ نے اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے، مینٹور جب آپ کا ہے، is he a man of prayer? If he is not a man of prayer, پھر آپ کے لیے بھی پریئر میں ڈیپ جانا مشکل ہوتا چلا جائے گا.
Sometimes you carry the grace, you carry the blessing. I would say the word blessing, not grace. आप अपनी जो दुआ की बरकत है, बाज़ औक़ात उसमें आपके लीडर का, आपके मेंटोर का रोल होता है. सो इसको आपने जरूर समझना है. एक लास्ट पॉइंट, the mentor must be a very good friend of the mentee. जो मेंटोर है लाजिम है कि वो अपने शागिर्द का जो है वो दोस्त हो. जीसस ने, खुदावंद ने उनसे कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा. Finally, with the passage of time, not on the first day, Jesus took time and he became the friend of disciples. मेंटोर जब तक दोस्त नहीं बनेगा, आपका मेंटी दिल की बातें बताने में दुश्वारी उससे पेश आएगी, मुश्किल लगेगा. मेरी मिन्नत यह है, जितने शागिर्दियत का काम कर रहे हैं, जितने शागिर्द बने हैं, जितने शागिर्द बनाना चाहते हैं, डिसाइपलर्स एंड डिसाइपल आपको किया जा रहा है, आप जो भी हैं, प्लीज यू मस्ट बी a good and very good and deep friend of your mentee or जो आपका शागिर्द है. This is important. आपके उसकी कुर्बत, आपको उसका नज़र, वो यीशु के साथ रहे. Intimacy with Jesus, intimacy with your mentor, intimacy with your spiritual father इस कदर important है. आपकी जिंदगी के कई बंधन, आपकी जिंदगी के कई जुए इसीलिए टूटे हैं क्योंकि तू अपने बाप के साथ रहा है. मैं अपनी रूह में महसूस कर रहा हूं जब मैं ये बातें कर रहा हूं, यहाँ पे शख्स है जो हमें सुन रहा है और खुदावंद आपसे कह रहा है, जब तू अपने बाप के साथ रहेगा, जब तू अपनी रूहानी माँ की कुर्बत में रहेगा, तो तेरी जिंदगी के तमाम जुए, वो गुनाह, वो बुरी आदत, वो बुरे रवैये तो तुझे दबोच लेते हैं. खुदावंद फरमाता है तू आजाद हो जाएगा, तू रिहाई पा जाएगा, तेरी जिंदगी में मस्सा बढ़ जाएगा, तेरी जिंदगी में खुदमत जो है उसमें वुसअत आ जाएगी, रूह का फल, रूह की नेमतें गहरी हो जाएंगी और पूरा जलाल जिसका तू मुंतसिर है, तू खादिम है, तू बेदिल है, तू मायूस है, तूने चलाया तू नाकाम हो गया, तूने और मिनिस्ट्री की तू नाकाम हो गया. God is calling you tonight again. खुदा आज फिर तुझे बुला रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरा फसल तेरे लिए काफी है. You are not a prodigal son. I love prodigals also. मैं तो मुसहफ से भी प्यार करता हूँ. तेरी नाकामी को मैं, तेरी बेदिली को मैं कामयाबी में और बहाली में तब्दील कर दूंगा. It is a woman I hear from the Holy Spirit. उसके बच्चे नहीं हैं. She has no children. God will give you children, my sister. Amen. You are weeping, I cannot have babies. But God is saying, लेकिन खुदावंद फरमा रहा है, मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा. हमें बहुत से सुन रहे हैं सर नईम को और मुझे, जो किसी के शागिर्द नहीं है. इस बात के बाद I would finish. I'm sorry. क्रिस्टोफर राइट, मिशंस की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी, उसके कॉन्फ्रेंस में, लौसान कॉन्फ्रेंस में जब कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया तो उनको टॉपिक दिया गया कि लीडरशिप एंड सिंपलिसिटी, लीडर और सादगी पर बात करें. उन्होंने कहा मैं इसकी बजाय इस पर बात करूंगा, अनडिसाइपल्ड लीडर्स इन द चर्च. चर्च में मेंटोर्स हैं, मेंटीज नहीं है. हम अपने आप को बिल्कुल पेंटिकॉस्टल दुनिया में माइक्रोवेव की तरह पास्टर्स पैदा होते हैं, इनक्यूबेटर की तरह जल्दी से एकदम से प्रोड्यूस होते हैं. खादिम 40 साल बाद भी बन जाए तो ये एक मिरेकल है. इसलिए मेरी दुआ, आपने जरूर इसको फॉलो करना है. खुदा ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में लाए, रूहानी बाप आपकी जिंदगी में लाए, आपकी जिंदगी में मेंटोर लाए, ताकि आप पहले शागिर्द बने, खुद ही से इनकार करें, फिर आप बाकी जिंदगी के पहलुओं पर बात कर पाएंगे. जो किसी का शागिर्द नहीं है, he is the most dangerous person in the kingdom. वो बादशाह में बहुत खतरनाक शख्स भी हो सकता है, और वो तरबियत याफ्ता न हो तो वो तो अपने अंदर ही एक तबाही और बर्बादी है. जितने हमें सुन रहे हैं, बाइबल ट्रेनिंग लीजिए, खिदमत कीजिए, शागिर्द बनिए और शागिर्द बनाइए. हम शागिर्द बने हैं, हम बनाते भी हैं. हम अपने नहीं, यीशु मसीह के शागिर्द बनाते हैं.
We are not disciples of Jermaine. He is my mentor. He is like my spiritual father. Everything is okay. But he is making me the disciple of Jesus. वो हमें यीशु के शागिर्द बना रहे हैं. खुदावंद हम सबको अपने रूहानी मेंटर्स पहचानने की तौफीक बख्शे. God bless you. मैं डॉक्टर साहब से इसी सवाल के मुतालिक पूछना चाहूँगा. डॉक्टर साहब, अब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी. जी, आपने ऑलरेडी काफ़ी खूबसूरती से इस सवाल को एड्रेस कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और तफसील पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ पास्टर ही है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है किरदार साजी में, या चर्च एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट और मीडिया, जैसे हमारे पास बहुत से टीवी चैनल्स हैं, वो सब भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, इवन फैमिली? Definitely it's not only the pastor. अगर आपकी रूहानी जिंदगी सिर्फ एक पास्टर पे डिपेंड करती है और एक संडे के सरमन पे डिपेंड कर रही है, तो आपकी रूहानी जिंदगी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में. सो यू कैन नॉट डिपेंड टोटली ऑन वन पास्टर एंड वन संडे सरमन. सो और लोग भी आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को लाते हैं. अच्छी किताबें हैं और सेलेक्टिव खादमों की आप मैसेज सुने, वीडियोस देखें. मैं अपनी स्टडी के लिए 4-5 जो मखसूस सीनियर थियोलॉजियंस हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ. आई रीड देम, आई लिसन टू देम, जिनमें एक रवि ज़कराया भी थे, जॉन पाइपर हैं, और तो हैव सम सेलेक्टिव पीपल इन योर लाइफ जिनको आप बाकायदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और विजिट करते रहें उनकी वेबसाइट्स को या मटीरियल को. हम उनसे भी बहुत कुछ गेन करते हैं. और सेकेंडली, जो इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, जो रूहानी जिंदगी है या किरदार की तश्कील है, ये एक बड़ा प्राइवेट सा मैटर है. किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा कि यू डोंट हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ व्हेन यू आर इन द पब्लिक, यू ग्रो स्पिरिचुअली व्हेन यू आर इन द प्राइवेट. जब आप शख्सी जिंदगी में, जब आप गौर करते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप खुदा से बातचीत करते हैं, दैट इज द रियल चेंजिंग टाइम, दैट इज द ग्रोइंग टाइम. लेकिन इसके अलावा भी कांग्रीगेशन में, पब्लिक में भी खुदा अपना काम करता है. और कलीसिया के जमा होने में भी एक बड़ी कुदरत है. कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग में जब हम जाते हैं, मिलकर हम कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, वो कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग हमारे कैरेक्टर को, हमारे ईमान को और हमारी जो इनर बीइंग है उसको चार्ज करती है, स्ट्रेंथन करती है. अभी अगर आपने नोट किया, ये जो लॉकडाउन था, तो बहुत से मुल्कों में और इधर भी जब हम ऑलमोस्ट 2 months लॉकडाउन में रहे, तो बहुत से लोगों ने फील किया वो फिजिकली वीक हो गए, बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही है. हाँ, तो इसी तरह से जब हम स्पिरिचुअल लॉकडाउन में चले जाते हैं, दूसरों के साथ मिलकर इबादत नहीं करते हैं और हम अकेले ही रहना पसंद करते हैं और खुदा की जमायत में नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं. तो चर्च भी एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है. यानी चर्च की इबादत और कांग्रीगेशनल गैदरिंग, वो हमारे फेथ को और हमारे कैरेक्टर को बदलती है. और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट अब ये है कि वी आर कॉन्शियस कि चर्च के ये लोग हैं, इफ आई एम लिविंग बैड, इफ आई हैव अ बैड बिहेवियर, तो ये लोग क्या सोचेंगे. तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी और उनके साथ आपका अटैच होना कई बातों पर आपको गालिब आने में आपकी मदद करता है कि आप और ज़्यादा प्योरिटी की तरफ और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएं, ताकि जो हमारे दीगर चर्च के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो हमारे ताल्लुक से एक बेहतर रेपुटेशन को जान सकें या देख सकें. सो बहुत से अदर फैक्टर्स हैं और हर शख्स की ज़िंदगी में एक उसका अपना एक ग्रोइंग पॉइंट है. So some people when they listen and hear a sermon, उससे उनकी ग्रोथ होती है. कुछ लोग का जो चेंज है कैरेक्टर में, वो पढ़ने से आता है और कई लोगों का सुनने से आता है, कई लोगों का मेडिटेशन से आता है. सो हर शख्स का एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक एक इंडिविजुअल पॉइंट है जिससे उसको स्पिरिचुअल चेंज, ग्रोथ या जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है वो होती है. तो हर शख्स अपने लिए अडॉप्ट करे, देखे
डिस्कवर करे कि मैं ज्यादा बेहतर किस मेथड से सीखता हूँ, क्या चीज मेरी जिंदगी में ज्यादा चेंज लाती है, तो वो उस मेथड को अडॉप्ट करे अपनी जिंदगी में और उस पर अमल करें, और डेफिनेटली ग्रेजुअली हमारी जो जिंदगी है, वो किरदार है, वो बदलता चला जाएगा। और जो करेक्टर फॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ डेज वर्क। मैच्योरिटी आती है, टाइम लगता है बुलूगत के आने में, बट वी मस्ट बिगिन द प्रोसेस। और इसमें जो एक बात हमारी सबसे ज्यादा मदद करती है, वो सेल्फ डिनाइल है, खुद ही का इनकार। पर जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे बोले। सो टू बिकम लाइक क्राइस्ट, इससे पहले हम ये बात करें कि आपने स्लीप उठानी है, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द कॉस्ट, यू हैव टू कैरी योर क्रॉस। हम इस बात को सीखें, सेल्फ डिनाइल, खुद ही का इनकार। जब हम खुद ही का इनकार करते हैं, that we are not living for ourselves, we are living for Jesus Christ. हमारी जिंदगी का मकसद चीजें या शोहरत हासिल करना नहीं है, यीशु मसीह को जलाल देना है। When self denial is there, then to carry the cross is easy. It's not difficult. लेकिन जब खुद ही मौजूद है, तो फिर ये रास्ता जो है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो मसीही किरदार है, इट्स द नैरो वे और इट्स अ नैरो डोर। ये तंग दरवाजे में से गुजरना है और ये तंग रास्ते पे चलना है और ये खुद इनकारी का सफर है। जितनी जल्दी आप खुद इनकारी सीख लेते हैं, मसीह के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लाना आपके लिए उसी कदर इजी हो जाता है। थैंक यू।